discussion. Okay, so we have already explained the operating principle or circuit diagram or waveform of the single phase half wave control rectifier. Now we just try to this waveform simulate the circuit diagram in MATLAB. Okay, so if you want to design MATLAB, so just first of all open the MATLAB library and when you open the MATLAB, you just open this one, like that, and this is your first prefix page of the simulation. And if you click here and select the Simulink model. Select the Simulink model. So this is your workspace where you can simulate your circuit and observe your output waveform variation. So first of all, we observe that what are the components we require to simulate a single phase half wave control rectifier. Single phase half wave control rectifier. So as we seen in the previous class, the requirement of the simulation of single phase half wave control rectifier is similar to single phase half wave uncontrolled rectifier. Only the switching device is your difference, that means thyristor in place of diode. Okay. So first of all, whatever the element you choose in your single phase half wave uncontrolled rectifier, all those elements choose here. That means first is your, suppose that a scope where you can observe the waveform of the waveform. Okay. So here is a scope. This scope we just drag to the workspace. Okay. And next, what we have required? Next parameter, that is AC voltage source. So where you find AC voltage source? Maybe in electrical source. So here is your AC voltage source. This AC voltage drag to the workspace. Okay. So just drag to the workspace. So AC voltage source is available here. And next is your element. Okay. So that means series RLC branch. So just this block drag in workspace. Drag in workspace. When you click on this RLC branch and Control R, so just you can rotate this one. Okay. Next, different parameters required to you. Switching device of power electronics. So that switching device of power electronics, maybe find out just a few controlling power electronics. Okay. Controlling power electronics. So that means here you want to use thyristor. Okay. Various type of power electronics are available here. So from here, this is your thyristor. So just drag to the. So this is your thyristor. Now, if you connect all these components according to your circuit. So just this thyristor connected to AC source that we shown here. Okay. And if you want to connect this find out from here. Okay. This RLC series branch, if you select and click, double click here, so you maybe change the parameters. That means if you click here, so anyone choose according to your requirement. That means R, L, C, RL, RC, LC, and open circuit. Okay. So what is our requirement? Our requirement is pure resistive board. So I just select resistive, apply, and
resistive load. This resistive load connect through this AC source. This one is the AC source. Okay. Next, we just set your AC voltage source parameters. That means here we to you peak amplitude. Okay. You may be set anyone, but if you use a standard AC voltage source, that means 230 volt RMS value into root 2, you multiply by root 2, then you will get the peak amplitude of the single phase. Okay. Any other value you may be choose. So if I select here, that means 5 or 5 volt. Okay. And frequency, according to your standard frequency is available here, 50 hertz. So just apply and click here. Okay. So apply and click here. Now, what we require? That means measurement of the waveform or display of the waveform. That means average output voltage, average output current, voltage across the thyristor, voltage across AC voltage source, input voltage source. So for measurement of these parameters, we need instrument device, that means voltmeter and ammeter. Okay. So from this measurement, choose the voltmeter and drag to the workspace. Okay. Choose the workspace. हेलो दीपक, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So whatever we have discussed in the previous class, just continue that discussion through the MATLAB. Okay. So I have already tried to simulate. So just try to follow this one. So what and how we can just start simulation. So when you open the MATLAB and choose your new untitled block, that means your workspace is created here. And in this workspace, you just drag the whatever the component you require from the simulation library. Okay. So जो भी हम लोग को सर्किट में पैरामीटर्स रिक्वायर था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं सिमुलेशन लाइब्रेरी से ला करके इसमें वर्क स्पेस में रख करके और सिमुलेट कर रहे हैं. ठीक है. हम लोग को चाहिए था क्या सर्किट में एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए था, थायरिस्टर, रेजिस्टर एंड उसको वेवफॉर्म मेजर करने के लिए वोल्टमीटर एंड एमीटर. एंड दिस वोल्टमीटर कनेक्ट थ्रू दी स्कोप. ओके. एसी वोल्टमीटर का हम लोग पैरामीटर सेट कर दिए थे डबल क्लिक करके. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट पल्स यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा. तो हम लोग को क्या चाहिए, गेट पल्स जनरेटर चाहिए. So just to type here, find out. So just I have already typed here power guide. Okay. So then enter. This power guide is available here. So from here we just drag to the workspace. Okay. वर्कस्पेस में हम लोग यहाँ पे पावर गाइड को ले आए. और कोई कंपोनेंट मिस कर रहा है इसमें? और कोई कंपोनेंट मिस कर रहे हैं हम लोग? स्क्रीन से सेट नहीं हो रहा. मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर और एमीटर ट्रैक करना पड़ेगा ना. वोल्टमीटर और एमीटर ट्रैक करना पड़ेगा.
अदर पैरामीटर्स तो हम लोग वर्क स्पेस में ला चुके हैं, ठीक है। कितना वोल्ट मीटर हम लोग को जरूरत पड़ेगा? एक सप्लाई वोल्टेज मेजर करने के लिए सप्लाई वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देंगे, एक आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए तो यहाँ पे लगा देंगे 1 volt meter across the thyristor, 1 ammeter required for the output current measurement. Okay, so for measurement, select the current emitter. So this emitter is just connect here. Okay. So just this emitter connect here and और कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं? इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। एक हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए? इनपुट वोल्टेज यदि मेजर करना चाह रहे हैं तो इसका हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जस्ट ये वोल्ट मीटर को हम लोग राइट क्लिक करके और रोटेट कर देंगे। You select this voltmeter, delete. Suppose this voltmeter you want to move here. Select Control R, so we can just move. Okay, so we can just cancel this one. Then we required here. So suppose that if you want to measure input voltage, so this voltage connected in parallel to the input side. Okay, so connect here. And this voltmeter connected for this scope. ये गेट पल्स हम लोग को देना पड़ेगा। थायरिस्टर में क्या करना पड़ेगा? गेट पल्स जनरेटर लाना पड़ेगा, ठीक है। गेट पल्स जनरेटर के लिए यहाँ पे हम लोग जस्ट टाइप करेंगे, टाइप गेट पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर, जनरेटर and enter. So we got pulse generator, and this pulse generator just drag to the workspace. Okay. Now this pulse generator event to the SCR. Okay. Event to the SCR. तो जस्ट कनेक्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट सिंपली यदि कनेक्ट कर दिए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आउटपुट वोल्टेज यदि मेजर करना चाह रहे हैं तो आउटपुट गेट पल्स यदि मेजर करना चाह रहे हैं हम लोग, गेट पल्स यदि मेजर करना चाह रहे हैं, जस्ट क्या करना पड़ेगा? गेट पल्स मेजरमेंट के लिए सिंपली एक वोल्ट मीटर हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस विथ थायरिस्टर, this one इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, थायरिस्टर के पैरेलल में। जस्ट कनेक्ट voltmeter parallel to the
thyristor. So now it is connected. So voltage across the thyristor. So this voltmeter connected to the thyristor in parallel. Okay. So we can measure the thyristor across the voltage across the thyristor. And if you connect the pulse measurement, so just we can now the voltmeter is required to connect here. So now we just increase the number of axes in this scope. Okay. So if we select the parameters, hello, Yes, sir. कितने एक्सेस की जरूरत पड़ेगा हम लोग को? कितना वेवफॉर्म हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे? एक तो हो गया इनपुट वोल्टेज, एक आउटपुट वोल्टेज, एक आउटपुट वोल्टेज हो गया, एक एक पल्स का। आउटपुट करंट हो जाएगा, एवरेज आउटपुट करंट, एक वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर एंड एक गेट पल्स यदि मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 वोल्टेज को हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दे रहे हैं आउटपुट में कनेक्ट कर दिए, so just carefully connect any instrument. Yeah, now it is connected in parallel voltmeter, and if we increase this number of axes, so one is already input voltage, another is your output voltage. Okay, so दो एक हो जाएगा आउटपुट करंट, तीन एक वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर, चार यदि हम लोग मेजर कर रहे हैं, और एक हो जाएगा गेट पल्स मेजर करना चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ एक्सिस इसको हम लोग और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना? यस सर। 5, so just 5. एक्सेस 5 आना चाहिए ना? So just type here 5 and apply and OK. Okay. So just create 5 axes. Okay. So here shown to you 5 axes. So just first और बड़ा कर लेते हैं. Output voltage, first of all, connected this gate pulse. Okay. So from the first case, this one connected through, just we can measure the gate pulse. Second one, just measure the output voltage. So just connected through the output voltage. And the third one, that is fourth one, connected this emitter output. And one more is, I think that means voltage across the थायरिस्टर. पांचों हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है. अब क्या करना है हम लोग को? रन करना है. So just set here the value, that means .0.
So if you click on the scope, you maybe observe the various. Okay. Click on the auto scale. Okay. Okay. One more thing. This waveform is true. You know, Deepak, Yes, sir. is it true or wrong? Is it similar to whatever we have explained earlier in the previous class? Similar to that one? सर इसमें नाम नहीं लिखा हुआ कौन सा वेब किसका इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर नाम उसमें मेंशन नहीं किया हुआ कौन नाम सा वेब मेंशन नहीं किया हुआ है, नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन वेवफॉर्म क्या सही है सब? यस सर वेवफॉर्म सही है, वेवफॉर्म ये सप्लाई वोल्टेज है, ये साइनसॉइडल दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? गेट पल्स जनरेटर, गेट पल्स जनरेटर हम लोग को सेट करना पड़ेगा पैरामीटर्स को। गेट पल्स जनरेटर को सेट करना हम लोग को यहाँ पे देखो पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा साइनसॉइडल वेवफॉर्म का? साइनसॉइडल सिग्नल का टाइम पीरियड कितना होगा सेकंड में? 0 to पास एक मिनट, कितना बोल रहे हो? टाइम पीरियड साइनसॉइडल वेवफॉर्म का कितना होगा? फ्रीक्वेंसी कितना बोले थे अभी? 50 हर्ट्ज ना? यस सर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/50 1 बाय सॉरी सर 1/f 1 बाय फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 1 बाय 50। 1 बाय 50 कितना हो जाएगा? 1 बाय 50 कितना हो जाएगा? 0.027 0.02। So just write 0.02। Okay, ये पल्स विड्थ हम 5 ही रख रहे हैं। फेज डिले कितना होगा? कितना हम लोग डिग्री का फेज डिले करना चाह रहे हैं? ये कितना डिग्री के बाद हम लोग गेट पल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको यह मेंशन करना पड़ेगा ना। फेज डिले दैट मींस जनरल वैल्यू सर्किट में हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट किए थे कि अल्फा के बाद हम लोग गेट पल्स अप्लाई करेंगे। ये फेज डिले सेकंड में कितना हो जाएगा? सपोज दैट 30 डिग्री पे हम लोग गेट डिले अप्लाई कर रहे हैं, डिले 30 डिग्री पे गेट पल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको डिग्री को, ठीक है? तो कितना लिख सकते हैं? 30 into time period that is 0.02 divided by 360. 360. Okay. Apply. Okay. Now, if you run this program, simulation model, so just run this one. Now just click on. So now it is similar to that one. अभी गेट पल्स क्या सही आ रहा है? गेट पल्स इसका मैच करें। अब ये फॉर्म सही आ रहा है। ये साइनसॉइडल वोल्टेज का इनपुट सप्लाई वोल्टेज है। ये गेट पल्स सेकंड जो गेट पल्स आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा? आउटपुट वोल्टेज जिस इंस्टेंट पे
गेट पर सप्लाई कर रहे हैं, उसी उसी स्टेट से देखिए शुरू करेगा। आउटपुट वोल्टेज देखो, इसको जस्ट एक्सेस शिफ्ट करना चाहिए, इसका एक्सेस और इसका एक्सेस यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना चाहिए, जस्ट शिफ्ट करना है इसको। लेकिन जस्ट जो वेवफॉर्म हम वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, सिमिलर टू दैट वन गॉट हियर। ओके, फर्स्ट वन इज योर सप्लाई वोल्टेज, that is sinusoidal supply voltage. Maximum amplitude we have already said 5, and gate pulse delay at 30 degree. So gate pulse waveforms like this one. Okay. And again up to 2 pi plus alpha, again gate pulse generate. So here again the output voltage we have got. Okay. So this is your output voltage waveform, and this one is your average output current waveform, similar to the average output voltage waveform. And last one, this is your that one, that means voltage across the thyristor. Okay. That means इसमें conduct कर रहा है, उसमें similar to sinusoidal voltage को follow करेगा, process axis को करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसमें conduct कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, voltage across the thyristor 0। 0। ये तुम लोग जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैटलैब खोल करके तभी होगा। ये सब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली तुम सिमुलेट कर सकते हो कोई भी सर्किट। क्या क्या कैसे हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसी भी मॉडल को सिमुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे जस्ट फॉलो करो। जस्ट हम लोग सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, सिमुलेटिंग लाइब्रेरी से कैसे कोई भी पैरामीटर्स जो ब्लॉक अवेलेबल है ऑलरेडी, सिर्फ हम लोग को क्या करना है वहां से ड्रैग करके और वर्क स्पेस में लाना है, प्रॉपर्ली कनेक्शन करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है? कनेक्शन क्लियरली दिख रहा है? हेलो, हाँ सर दिख रहा। या तो इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, तो इसको जस्ट हम लोग और क्लियर वे में दिखा सकते हैं। क्लियर दिखाने के लिए इसको हम लोग मूव कर सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस करने का है। हाँ, जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग सिमुलेट कर सकते हो। पॉसिबल हो सकता है तो तुम लोग घर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। पॉसिबल होता है, जिसका यूज नहीं है उसको हम लोग वर्कस्पेस से डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे जस्ट लोग और क्लियर पिक्चर कैसे बना सकते हैं। इसको जस्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा साफ इस तरह का। So just we can move this diagram one log, suppose that this one. Okay. So if you move this voltmeter of this side so that you can get the proper connection. Okay. Now it clearly visible. ये यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। एसी वोल्टेज सोर्स है,
तो यदि जनरल में हम लोग लिख सकते हैं, उसका पूरी पैरामीटर या हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करके और जाके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पैरामीटर्स का। यहाँ पे हम लोग क्या किए, रेजिस्टेंस का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 ओम। ठीक है, यदि कोई दूसरा वैल्यू लेना चाहते हैं हम लोग 5, 10, 6, 8, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, उस ब्लॉक पे जाकर के डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं कोई पैरामीटर्स का। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस को चेंज करने का। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, गेट पल्स, दैट मींस थायरिस्टर। थायरिस्टर है, जस्ट थायरिस्टर में हम लोग कुछ सेट नहीं करना है, टोटल पैरामीटर्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड जो इसका है थायरिस्टर का। रेजिस्टेंस वैल्यू 0.001 वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस वैल्यू फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप वेरी स्मॉल 0.8 इस तरह मेंशन किया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे गेट पल्स हम लोग एम्पलीट्यूड गेट पल्स का 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसी के गेट पल्स का एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, और ये तो चेंज करना पड़ेगा, टाइम पीरियड 50 है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग। यदि 30 डिग्री से हम लोग 60 डिग्री कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, गेट पल्स डिले यदि हम लोग 60 डिग्री करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फेज डिले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 60 डिग्री या 45 डिग्री ये कर दे रहे हैं। 45 डिग्री यदि कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट 45। ओके, सो अप्लाई एंड ओके। ओके, सो गेट पल्स हम लोग चेंज कर दिए, गेट पल्स डिले कितना कर दिए, 30 डिग्री की जगह पे 45 डिग्री, 45। 45। ठीक है, तो अगेन इसको हम लोग रन कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दी स्कोप, फेज डिले देखो चेंज कर गया ना, गेट पल्स ड्यूरेशन ये 45 डिग्री पे स्टार्ट। ठीक है, 45 डिग्री आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म भी उसी करस्पॉन्डिंग चेंज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग गेट पल्स डिले को चेंज करेंगे, उसी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज करेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन चेंज करेगा। इसमें बोलो तुम लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉक को कनेक्ट करने या कैसे मूव कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का कोई डाउट है, तो छोटा छोटा बेसिक तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर में, किसी भी तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ जरूरत नहीं है हम लोग को। बेस्ड ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही हम लोग को मॉडल सिमुलेट करना है। ठीक है, लेकिन मैटलैब में बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, मे बी सॉल्व दैट। ओके, मेन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द मॉडल। सबसे पहले सर्किट में क्या क्या तुमको कंपोनेंट चाहिए ये जब पता है, और मैटलैब का लाइब्रेरी जो सिमुलेट लाइब्रेरी, वहां से हम लोग कैसे कोई ब्लॉक को ड्रैग करके वर्क स्पेस में लाते हैं। इसमें यदि स्टैंडर्ड सब ब्लॉक दिया हुआ है, हर एक में, जैसे सिंक में जाओगे तो डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, सोर्स में जाओगे तो डिफरेंट टाइप का सोर्स दिया हुआ रहेगा, सोर्स पे क्लिक करने के बाद सिंक पे जाओगे, सिंक पे बहुत सारा दिया हुआ है। ये क्या करेगा, जो फॉर्म दिखाएगा, ये डिस्प्ले क्या करेगा, मेजर करके वैल्यू बताएगा। ठीक है, बहुत सारा दिया हुआ है। तो ये मेन ये होना चाहिए कि हम लोग को मेजर एलिमेंट कहाँ से मिलेगा मॉडल का, इसमें दिया हुआ है बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सोर्स एलिमेंट, मशीन कंपोनेंट मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिकल सोर्स। ठीक है, एक बार में तुम लोग को कोई भी ब्लॉक मिल जाएगा यहाँ पे क्लिक करोगे, और उसको जस्ट ड्रैग करके वर्क स्पेस में लेकर के आना है, और वहां से जस्ट तुम लोग को कनेक्शन करना है। ठीक है, अभी तक तुम लोग को घर में कुछ प्रैक्टिस किए हो कि नहीं, कोई मॉडल लेकर के? नहीं, हेलो दीपक,
Yes, sir. प्रैक्टिस किए हो तुम लोग घर में? मतलब नहीं हो पा रहा होगा ना सिस्टम? No, sir. क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिस कर पा रहे हो घर में कि नहीं? सर सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ओके, जब पॉसिबल होगा तो इसको तुम लोग प्रैक्टिस करना। जस्ट जैसे हम लोग Okay, यहाँ पे sir. मैटर में जैसे हम लोग दिखा रहे हैं लैब करके, इस तरह का तुम लोग को जस्ट दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिस जब तुम लोग को मौका मिलेगा तो जस्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। So just we stop here, and in the next class we will discuss about the same things for the different type of load. Okay, different type of load, that means RL load. For this, for the RL load, maybe the waveform variation will be changed. Okay, so just add inductance in the place of pure resistance. Okay, तो कैसे चेंज करते हैं RL, ये हम यहाँ पे दिखा ही दिए। यहाँ पे यदि हम लोग को RL लोड कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि इसको हम लोग रेजिस्टेंस बनाए ना, प्योर रेजिस्टेंस, यदि आरएल करना होगा तो कैसे होगा? इंडक्टर लगा देंगे सर। इंडक्टर लगा, तो इंडक्टर लगाएंगे कैसे? इंडक्टर कैसे लगाएंगे? कैसे चेंज किए थे इसको? ये तो पूरा आरएलसी तीनों दिखा रहा था ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर। इसको सिर्फ रेजिस्टेंस कैसे किए? ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना। इसमें जब हम लोग सिमुलिंक लाइब्रेरी से लाए थे, क्या हुआ था? उसमें तीनों दिखा रहा था, रेजिस्टेंस भी दिखा रहा था, इंडक्टेंस भी दिखा रहा था और कैपेसिटर भी दिखा रहा था। हम लोग उसको जब रिक्वायरमेंट था हम लोग का प्योर रेजिस्टेंस का, तो हम लोग उसको प्योर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किए। अब यदि हम लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा आरएल लोड का, दैट मींस रेजिस्टेंस का, हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? Just we click on this block na resistance, so we can change the parameters from this point. Okay, you select any one, either pure inductance, pure capacitance, RL, RC. Okay, so from here we can just select and choose any particular row. Okay, so only keep in your mind how you can just move. So just we stop here. The next class we will discuss for the RL load, then we for variation. Okay. Hello. Yes, sir. Okay. So just we stop here. Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you. Attendance तुम लोग complete कर लेना थोड़ा।